waters. Okay, they were used for transportation since early days. Okay, waterways are the cheapest for carrying heavy and bulky goods over long distances. There are mainly of two types. Okay, waterways. See, waterways are of two types. Inland waterway. Waterways are of two types. दो प्रकार के होते हैं. Okay, one is the inland waterway and the other one is sea routes. okay, it is the sea routes. ठीक है ना, समुद्र के रास्ते से जो है. ओके, Seaway. ठीक है ना. So see, have a look. Navigable rivers and lakes are used as inland waterways. Navigable का मतलब क्या होता है? Navigable का मतलब होता है जिन नदियों में जो है आप प्रवेश कर सकते हैं और उनको अपने काम में जो है ले सकते हैं. ऐसे बहुत सारी नदियां हैं जो बहुत डीप हैं. ठीक है ना, बहुत डीप है और प्लस बहुत स्लिपरी है. सो यू कांट यूज दोज रिवर्स because there is always a risk of accident taking place. Okay, so only some rivers are navigable. So the rivers which are and the lakes which are navigable, you use these as okay inland waterways. ठीक है ना. So what we see is navigable rivers, navigable rivers and lakes, okay, are used as inland waterways. Okay, now the Ganga Brahmaputra delta has been mentioned here. See, ओके जो डेल्टा गंगा और गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलके जो डेल्टा तैयार करते हैं उसको गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहते हैं, या द रिवर सिस्टम. Okay, which has been prepared by these two rivers. And what we see, the Great Lakes in North America and the river Nile in Africa. Okay, तो हम देख रहे हैं कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, एग्जाम्पल्स में हम दे सकते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम. Okay, and then you have the Great Lakes. How many lakes are there in the Great Lakes system? Great Lakes में कितने नदियां कितने lakes हैं? Tell me children. हाँ बोलो. Nobody. किसी को नहीं पता है. मैम क्या? How many lakes are there in the Great Lakes? Great Lakes में कितने lakes आते हैं? 5. What are they? बोलो. हाँ ले. Who is this? ले ला. हाँ. मैम बस Singing song. How many Great Lakes में कितने? हाँ. नहीं मुझे देखेंगे. Stop talking in regional language. देखो, अगर हमें ग्रेट लेक्स की नदियों को जो तालाब हैं, ठीक है ना, ओके, लेक्स को हम तालाब कहते हैं, उनको अगर हमें याद है. हाँ तो बताओ कौन से हैं मैम. How many are there? 5 are there ना. H stands for what? Yes ma'am. Huron. Okay, O stands for Ontario. Ontario. Okay? And M stands for Michigan. Michigan. Okay. M stands for E stands for Erie. And S stands for Superior. okay. Okay. So you see, now you will be able to remember the lakes. अगर आप इसको याद रखेंगे HOMES होम्स, अगर आपको होम्स याद रहेगा तो आपको ग्रेट लेक्स में कितने लेक्स हैं उनके नाम भी याद रहेंगे. So the first one is Huron, the second one is Ontario, and the third one is Michigan, and the fourth one is Erie, fifth one is Superior. All these great lakes, okay, these great lakes, they are okay in North America and they are freshwater lakes. ठीक है ना, इनका पानी जो है हम पीने में इस्तेमाल करते हैं. These are freshwater lakes, okay, and they are the best fishing grounds also. यहाँ पे मछलियां भी जो है खूब ज्यादा तादाद में पाई जाती हैं.
Now see, sea routes and oceanic routes are mostly used for transporting merchandise and goods from one country to another. तो समुद्र का जो रास्ता है, ओके, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, द सी रूट टू इंडिया, इट वाज डिस्कवर्ड बाय, ओके, द सी रूट टू इंडिया वाज डिस्कवर्ड बाय वास्को ड गामा. किस साल में डिस्कवर किए थे उन्होंने? इन विच In ईयर? 1498. यस, इन 1498. और क्रिस्टोफर कोलंबस ने कौन सा रूट लिया था और उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका. मैम इंडिया डिस्कवर किया था. ओए, हु इज दिस इंडिया नो मैम, डिस्कवर? मैम अमेरिका. अमेरिका. एंड विच रूट ही टुक? मैम अमेरिका डिस्कवर किया. हाँ, अमेरिका डिस्कवर किए थे, तो कौन सा रास्ता उन्होंने लिया था? ही टुक द वेस्टर्न रूट. ठीक है ना? इंडिया जो है ईस्ट में है, ठीक है ना? इंडिया इज समुद्र के इलाकों से. यस बेटा, क्या कह रहे हो? सी, क्रिस्टोफर कोलंबस, okay, he belonged to which country? America. Took the west route. Okay, he took the western route and discovered what? And he discovered America, the Caribbean islands. उन्होंने Caribbean islands को discover किया था, okay, which was called America. ठीक है ना? और वास्को ड गामा ने जो है वो पूर्वी दिशा को पकड़ा था, उन्होंने जो ईस्टर्न रूट को पकड़ा था, इसीलिए जो है वो भारत, यस, इसीलिए जो है वो भारत की खोज कर पाए. ठीक है ना? नाउ सी चिल्ड्रन, have a look. These routes are connected with the ports. Some of the important ports of the world are Singapore and Mumbai in Asia. Mumbai port has a special mention in India and देखो, मुंबई पोर्ट के पहले भी हमारे देश में बहुत सारे पोर्ट थे. 17वीं सदी को अगर हम लेते हैं तो 17th century में there were 3 important ports, okay, and these 3 important ports were Surat, okay, then you have Machlipatanam, जिसे आज के डेट में हम मसूलीपट्टनम कहते हैं, ओके, मछलीपट्टनम वाज देयर एंड सेरिंगापट्टनम. These were the important ports in 17th century. ओके, ये जो मुंबई पोर्ट का जिक्र यहाँ पे हुआ है, मुंबई पोर्ट का जो है इंपॉर्टेंस जो है आप 19th सेंचुरी में देखते हैं. ओके, सो वी सी दैट सूरत, Machlipatanam and Seringapatanam were the important ports of 17th century. Okay, और जैसे ही जो है इन पोर्ट्स का अस्तित्व जो है कम होने लगता है, ओके, नए नए पोर्ट्स के ऊपर जो है अंग्रेज ध्यान देने लगते हैं और हम देखते हैं कि इन पोर्ट्स का जो है इंपॉर्टेंस जो है वो कम होने लगता है. ओके, सो व्हाट वी सी हियर, New York, Los Angeles in North America, Rio de Janeiro in South America, Durban and Cape Town in Africa, Sydney in Australia, London and Rotterdam in Europe. Can you name some more ports of the world? Can you name some more ports of the world? Do you remember any ports? विश्व के और भी ports याद हैं आपको? अपने ही देश के ports के नाम बताइए. सूरत, मछलीपट्टनम, सेरिंगापट्टनम, 3 तो मैं बता दी, एक आपके बुक में है मुंबई. इसके अलावा हाँ, इज दिस अ पोर्ट? विशाखापट्टनम, क्या ये मैम चेन्नई पोर्ट? क्या ये एक पोर्ट है विशाखापट्टनम? इज इट अ पोर्ट? Yes, ma'am. Can we consider Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can we Ma'am, consider Ma'am, Kandla Chennai Port, Port. Ennore Port, Mormungao Port, can we consider Tuticorin Port, Jawaharlal Nehru Port. can we Ma'am, consider मैम सब लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं. जवाहरलाल पोर्ट. मैम चलो मैम सब लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं. मैम सब चलो। लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं. करने दो, कहीं भी कर रहे हैं करने दो, एटलीस्ट नाम तो निकल के आ रहा बता रहे हैं ना. है. ओके, listen children, Calcutta, okay, we can also at presently it is called Kolkata, isn't it? Okay, तो present नाम जो है हम देंगे इसको
So all these are some of the important ports of our country, but here we have been asked about the world. So this is your home task. Try to find out some of the important ports of the world. Okay. अब ये ports का काम क्या होता है? What function do the ports play? Ma'am, on ship, transfer of some objects or Ma'am, How are ports used? Ports are important. Why? Why they are important? ma'am, जो दूसरे देशों से सामान आते थे सब शिप से, As they help in what? As they help in transport of goods. ठीक है ना? एक देश से दूसरे देश में Ports are सामान also भेजने के important लिए, for the support of economic activities. हाँ, तो आपकी अर्थव्यवस्था में कैसे आपको लाभ मिलेगा? आपका जब सामान है, जो देश में आप सामान तैयार कर रहे हैं, जब दूसरे देश को निर्यात करेंगे तो उसके बदले आपको पैसे मिलेंगे ना? हाँ, उसके बदले आपको पैसे मिलेंगे, तभी ना आपकी अर्थव्यवस्था सुधरेगी. हाँ, so what we see that the ports, they help in transport of goods from one place to another. ठीक है. ये inland transportation भी होता है हमारे देश में, एक जगह से दूसरी जगह भेजने में भी काम आते हैं, और विदेशों में अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भी ये काम आते हैं. Okay, so this is why the ports are important. Okay, now see, we will start with the airways. Have a look. Now tell me the layer which is best suited for the flying of aeroplanes. Name the layer of Stratosphere. why? Stratosphere. Why? Stratosphere. Why the stratosphere? आर्यन, एक सेकेंड चुप रहो तुम लोग. आर्यन, अनम्यूट करो खुद को. यस मैम, हाँ बाबू, बताओ स्ट्रेटोस्फेयर में एरोप्लेन्स क्यों उड़ाए जाते हैं? मैम, हाँ बोलो. हम लोग मैम क्यों? लेट आर्यन रिप्लाई. मैम क्योंकि वहाँ कोई भी वेदर फिनोमिना नहीं होता है. दीक्षा, आई एम आस्किंग आर्यन, नॉट यू. लेट आर्यन रिप्लाई. हाँ Aryan, what is the answer? बोलो. Now Diksha, you can tell. Diksha, अब आप बता सकते हो. मैम, The turbulence which is common in the troposphere below. मैम वहाँ कोई भी वेदर फिनोमिना नहीं होता, इसलिए और एरोप्लेन मैम वहाँ पे हवाई दुर्घटना भी नहीं हो सकती. मैम मैं ही उड़ाऊंगा. बहुत अच्छे आंसर्स आ रहे हैं. हाँ, this layer is best suited. Listen children, okay? This layer is free from clouds. ठीक है ना? वेदर फेनोमेना बता तो रही हो दीक्षा, लेकिन आप क्लियर नहीं कर रहे हो, आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो कि which kind of weather phenomena is required for the flying of aeroplanes. This layer is free from clouds. ठीक है ना? इसमें क्लाउड्स नहीं होते हैं, बादल नहीं होते हैं. ओके, अगर आपकी प्लेन जो है, आप प्लेन में बैठे हैं और आपकी प्लेन अगर बादलों के बीच से गुजर रही है और अचानक से थंडर एंड लाइटनिंग होने लगा तो क्या होगा? आप वहीं पे रोस्ट, प्लेन क्रैश हो जाएगा है ना? सबसे पहले तो आप रोस्ट होंगे, शिकार तंदूरी हो जाएगा. एरोप्लेन के अंदर ही आप रोस्टेड जो है, ठीक है ना, रोस्टेड हो जाएंगे. इना मीना डी का आप लोग देखते हो? मैम तो कौन लेकिन पता है. डू यू वॉच दैट कार्टून इना मीना डी का? हाँ, यस मैम देखा नहीं है. उसमें देखते हो ना, तीनों मुर्गियां रहती हैं और एक जो